Janil, good afternoon. Good afternoon, Shivang. Aditi, good afternoon. Good afternoon, Anshika. Deepan, good afternoon. Shraddhanand, good afternoon. Ankita, good afternoon. Exam from the diode family. Because diode family itself is a big topic, and the most important topic, if you see from the gate perspective, is the clippers, and you can say the Zener diode. But of course, you can expect a question from the basic diode questions that we did. A lot of basics question also come on off state of the diodes and just calculation of something in the question when diodes are given. So those things are also important. So diode family we're going to finish. So today I'll see means after some time if I feel like we will start BGT, otherwise we will start the BGT tomorrow. So let's start with the topic. I think yesterday we completed the small signal model. And in the small signal model, we saw a few things. And after small signal model, we started with the low frequency small signal model. Ritesh, good afternoon, beta. Low frequency small signal model we started with. And after low frequency small signal model, we did one question that both AC and DC will be connected if a small signal low frequency model is given to you. And if a DC is connected, then first you will be doing the DC analysis for the small signal, and after doing the DC analysis, you will be calculating the DC current because you will be needing the DC current for the calculation of the dynamic resistance or the AC resistance, which will be needed for the AC analysis. I hope you do remember all these points. Devaka, good afternoon. Yes, you do. So large signal model is same what we did for the diode, ideal CVD PWM. Okay. Good afternoon, Guntha. Good afternoon. So in forward bias condition, अगर हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात करते हैं गुड आफ्टरनून वासु बेटा आपको पता है इन केस ऑफ अ लार्ज सिग्नल मॉडल फर्स्ट कंडीशन इज द आइडियल केस मतलब in the forward bias condition diode will be replaced by an open circuit. In the reverse bias it will be replaced by a oh sorry in the forward condition it will be replaced by a short circuit. In the reverse it will be replaced by an open circuit. If we have a CVD model, it will be replaced by a voltage source that is V gamma, जैसे हम लोगों ने DC के लिए भी करते थे. And if we have a PWL model, which is the model which is this is the model which is going to get utilized in the large signal model. If a question will appear on the large signal model case, this is the model that you will be using, PWL. बाकी मैं आपको भी थोड़ा इसके बारे में और समझाऊंगा. ठीक है, एक क्वेश्चन करूंगा ना, उससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. जस्ट रिमेंबर दैट क्वेश्चन, बस खत्म हो जाएगा उतने में. So in PWL model, you will replace it by a resistance and a voltage source. Resistance will be, let's say, R. Voltage source is V gamma. Voltage source is V gamma. So R, this will be equal to what? Delta VD अपॉन डेल्टा आईडी. क्या है सर? ये क्या है? अभी आपको बता देता हूं. वैसे यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, पर अभी मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर में. ठीक है, नेक्स्ट.
तो अच्छा, इतना समझ में आ गया ना? ये तो मतलब इजी था, इसलिए मैंने ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बट आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना? ये तो नॉर्मल है, सारे जो पुराना वाला था वही है, इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, ठीक है? So if I draw the device characteristics, characteristics नहीं बने उनसे, ओके, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इन केस ऑफ स्मॉल सिग्नल मॉडल बेटा क्या होता था? स्मॉल सिग्नल मॉडल मतलब इतना, है ना? स्मॉल सिग्नल मतलब इतना, तो ये अप्रोक्सीमेटली लीनियर होता था, ये अप्रोक्सीमेटली लीनियर होता था। तो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग इट, what you do basically, you draw a tangent to at this point, at this curve. थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने एग्जेजरेट करके बनाया है, अदरवाइज ये बस इतना सही है, ठीक है? सो वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, दैट विल गिव यू द एसी रेजिस्टेंस, दिस विल बी डेल्टा वीडी, मतलब दिस डिस्टेंस, सॉरी दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस अपॉन डेल्टा आईडी, यू विल गेट द स्लोप। तो अभी तक तो अपना ये था, पर लार्ज सिग्नल में क्या होगा? लार्ज सिग्नल में आप लार्ज रेंज लेंगे, सपोज यहां से यहां तक है फ्लक्चुएशन, लेट्स से दिस इज द लार्ज सिग्नल पोर्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज ऐसे बनाया मैंने, अब ना हम टेंजेंट तो नहीं लेंगे क्योंकि अभी बहुत बड़ा पोर्शन है, तो हम इसको इसको जोड़ते हैं और इस लाइन की स्लोप ले लेते हैं, ये जो है इसको हम स्लोप ले लेते हैं। सो नाउ इन दिस केस आर, जो मैंने ये आर लिखा है, दिस विल बी डेल्टा वीडी अपॉन डेल्टा आई, मतलब अब इसकी और इसकी रेशियो ले लेंगे अगर हम इन दोनों की ट्राइंगल में, तो इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी, और ये जो स्लोप है यही इस स्लोप मानी जाए, स्लोप जो है वही आपको रेजिस्टेंस दे देगी, ऑब्वियसली उसका इनवर्स, डेल्टा वीडी बाई डेल्टा आईडी इज द इनवर्स ऑफ दिस। समझ में आया लार्ज में क्या करना है? स्मॉल में तो टेंजेंट से काम हो जाएगा, लार्ज में आपको दोनों पॉइंट्स को जोड़ के काम करना है, लार्ज में आपको दोनों पॉइंट्स को जोड़ के काम करना है। गुड आफ्टरनून विशाल, गुड आफ्टरनून, गॉट द पॉइंट? तो लार्ज सिग्नल में बस यही है, मतलब लार्ज सिग्नल में आपको पीडब्ल्यूएल मॉडल यूज करना है, हो सकता है ये भी करना पड़े डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बट यही होता है नॉर्मली यूज हर बार। पीडब्ल्यूएल मॉडल में आपको बस रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए अगर आपको कर्व पता होगा तो आप इन दोनों से निकाल लोगे, बस खत्म हो गया, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, थिंग्स विल गेट क्लियर, थिंग्स विल गेट क्लियर। चल, तो दो चार क्वेश्चन करते हैं, आप विद दैट वी विल फिनिश दिस टॉपिक। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई थॉट कि करवाना जरूरी है एक इस तरह का भी, तो मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेटवर्क, थोड़ा सा सोचना कि नेटवर्क मैंने इस तरह का कुछ कुछ करवाया हुआ है, ऐसे नेटवर्क में कई क्वेश्चन करवाए ना, आपको मॉडल याद भी करवाया हुआ है, बट चलो देखते हैं, मैं समझाता हूँ बाद में। द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड is I is equal to V minus 0.7 divided by 500, V greater than equal to 0.7 and 0 for V less than 0.7.
Find the current I. Find the current I. So, सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है। चलो एक बार देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार ट्राई कर लो, हल्का सा पढ़ लो, मतलब क्वेश्चन समझ लो। ये तो दे दो तुम, आई और मी। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है वो। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एक पीएन डायोड के गिवन है, इस पीएन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ठीक है। और करंट आई निकालने के लिए बोल रहा है। आपको याद है नेटवर्क में मैंने एक मॉडल करवाया था कि लोड अगर आपका नॉन लीनियर है तो आप एक सर्किट से इक्वेशन बनाएंगे, एक नॉन लीनियर लोड की इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन, बस इस बार डायोड लगा दिया उसने। समझ में आया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं जो हमें गिवन है यहां से। तो आई इज इक्वल टू 1/500V minus 0.7 by 500. Although you do not need any more information from this equation, पर मैं किसी रीजन से आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसे देख लेते हैं ना क्या मिल रही है इंफॉर्मेशन। अदरवाइज बाय सॉल्विंग दिस V will be equal to 500I plus 0.7. First equation. Basically, if you plot this is a straight line equation. देखो ये क्या बोल रहा है, स्लोप है लाइन की 1/500, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। नाउ यू सी एट व्हाट पॉइंट, फॉर व्हाट वोल्टेज द करंट विल बी जीरो, what should be the value of the voltage so that the current becomes equal to zero? Can anybody tell me for what value of voltage the current will be zero? Good Ritik, 0.7। यहाँ 0.7 डालोगे कट जाएगा। इसका मतलब ये लाइन यहां तक जीरो है और फिर इसके बाद हमें स्लोप मिल रही है। What is the slope of the line? The slope is 1/500। मैं बता रहा हूं, हम इंफॉर्मेशन क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहां से। एंड इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन, then intercept this point is minus 0.7 by 500. So PWL characteristics of the diode are given. PWL characteristics जो हैं वो given है। ऑल्दो जरूरत नहीं है इस चीज की बिल्कुल भी, ठीक है। आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन, बट मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूं कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, बस, और कोई रीजन नहीं है इसका। चलो खत्म हो गया। यहां से वापस आते हैं क्वेश्चन में। एक इक्वेशन हमने, जो हमें इक्वेशन गिवन है वहां से मिल गई, एक यहाँ पे केवीएल लगा के बना देंगे। सो लेट्स अप्लाई द केवीएल इन दिस लूप। -10 plus 1k into I, that is 1000 I plus V is equal to 0. Okay, in this loop I have applied the equation. So यहां से V कितना आ गया? V is coming as 1000 I minus 1000 I plus 10, minus 1000 I plus 10। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, वी। सो 500 I plus 0.7 is equal to minus 1000 I plus 10।
सो ये साइड चला गया. 1500i is equal to 9.3, or you can see I is coming as 6.2 मिली. ठीक है बेटा, मॉडल क्लियर हो गया ये वाला. मॉडल क्लियर हो गया ये वाला. Good, good, good. This was one model. This was one. Now let's move on to the next question. ये क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार सोचो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ 2 मिनट में. चलिए, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट आई. हमें करंट आई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी, बोथ एसी एंड डीसी आर कनेक्टेड, कि खाली एसी या डीसी कनेक्टेड है? दोनों कनेक्टेड है. एज यू कैन सी, बोथ एसी एंड डीसी आर कनेक्टेड. तो हमें स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना होगा, है ना.
है ना? बताओ यार. We'll be going for the small signal analysis. Good, good, good. आज ही क्लास स्टार्ट करते टाइम एम्फसाइज किया था. ठीक है. हमारे पास जो एसी है बेटा वो वोल्ट में है. व्हेन इट इज इन वोल्ट विल बी गोइंग फॉर द लार्ज सिग्नल एनालिसिस. ठीक है. आया समझ में? कल बताई थी ना ये चीज. इट इज इफ इट इज इन मिली वोल्ट्स देन ओनली वी गो फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. ये तो वोल्ट में है भाई. ये तो अकेले ही ऑन करने की ताकत रखता है इसको. ये तो अकेले ही ऑन कर देगा इसको. सो विल बी गोइंग फॉर द large signal analysis. Okay. Now you know that in large signal analysis, we are going to replace the diode by a resistor and the cut-in voltage. है ना? तो कट-इन वोल्टेज कितनी है? So good, good, शाबाश. The cut-in voltage is 0.5 volt. Cut-in voltage कितनी given है? 0.5 volt. Now the next thing that I need is R. अगर मुझे R मिल गया then I can do the analysis. तो अभी हमने देखा था R किसके बराबर होगा? डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID. Delta VD is 0.7 minus 0.5 अपॉन डेल्टा ID. 0.7 पे कितना था? 4 मिली. 0.5 पे कितना था? 0. Hence this is coming as 0.2 upon 4 into 1000. That is 50. लो भाई, तुम्हारा डायोड का मॉडल तैयार हो गया. अब करते हैं इसका डीसीएम. इसमें तुम डीसी एसी कोई भी पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने लगी. फिर गोइंग फॉर डीसीएम एक्सेस. खाली डीसी यानी 2 वोल्ट. 100 ohms. 50. ये भी निकाला. सॉरी, ये कटिंग वोल्टेज 0.5. और यहां से जो करंट है इसको मैंने आई डी कह लिया. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट आईडी. निकालो अब आईडी. जैसे आपका मन करता है निकाल लो. आई एम गोइंग फॉर द नोडल एनालिसिस. सो यू कैन सी दिस विल बी Vx minus 2 upon 100 plus Vx upon 100 plus Vx minus 0.5 upon 50 is equal to 0. So Vx minus 2 plus Vx plus 2Vx minus 1 is equal to 0.
or Vx is coming as 3 divided by 4, 0.75 volts. But what I need is ID. मुझे क्या चाहिए? करंट आईडी. करंट आईडी किसके बराबर आएगा? Vx minus 0.5 divided by 50. That is 0.75 minus 0.5 upon 50. That is 0.25 upon 50. So ID is coming as, multiply कर दिया 1000 से 5 मिली एम्पियर. ये आ गया हमारे पास आईडी. ये क्या किया हमने? डीसी एनालिसिस. नाउ लेट्स गो फॉर एसी एनालिसिस. एसी लगाएंगे. एसी इज साइन ओमेगा टी वोल्ट्स, 100 और यहाँ पे अब डीसी नहीं आएगा बिकॉज आपको पता है एसी के लिए डीसी जो है वो शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है. नेटवर्क में भी बताया हुआ है आपको ये चीज. पूरे साइकिल के लिए एक में सपोर्ट करेगा, एक में अपोज करेगा, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा. सो डीसी एसी एनालिसिस केस में डीसी वोल्टेज वी गामा यहाँ पे नहीं लगाओगे. ठीक है. तो यहाँ पे खाली आर आएगा. आर इज 50. सो यहां से जो करंट गई डायोड की उसको मैंने आई डी बोल दिया. आई डी बोल दिया डायोड करंट को. अब अपन आईडी निकालेंगे. तो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं. यहां से टोटल करंट आई ले लेते हैं. आई निकाल के वोल्टेज करंट डिवीजन लगा देंगे. सो आई कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी दैट इज 1 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल जो भी इंपीडेंस है. तो क्या आएगी? 100 प्लस 100 इंटू 50 इन पैरेलल प्लस 100 अपॉन 3. This is coming as 3 at an angle of 0 degree upon 400. ये आपके पास बेटा आई आ गया. बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज इन आईडी. तो आई को करंट डिवाइड करवाते हैं, करंट डिवीजन लगाते हैं. आईडी विल बी आई अपॉन 100 plus 50, 150 multiplied by the other branch resistance that is 100. So this is equal to 3 upon 400, 3 at an angle of 0 degree upon 400 into 10 by 15, which is equal to 5. है ना? ये बचा 5. 1 by 200 at an angle of 0 degree or 1000, 10, 5 at an angle of 0 degree मिली एम्पियर. तो ये कितना हो गया? 5 sin omega t milli ampere. Therefore, the total current I which he has asked, this will be capital ID plus small id. That is 5 plus 5 sin omega t milli ampere is my answer. Is my answer. तो समझ में आ गया लार्ज सिग्नल वाले को कैसे हैंडल करना है. वन क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट. बस ये क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं लार्ज सिग्नल वाला क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. वी कैन इजीली हैंडल लार्ज सिग्नल क्वेश्चन आल्सो.
निकालो खुद। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। सो इफ यू सी, okay, tell me whether we will be going for large signal analysis or small signal analysis. Good. We will be going for the small signal analysis because Vp cos of omega t and Vp is 100 millivolt. Vp is 100 millivolt. So if you see it is 0.1 volt and 0.1 volt will not be able to on the diode. So we'll be going for the small signal analysis. If I'm going for the small signal analysis, first I'll have to go for the DC analysis. सबसे पहले हमें डीसी एनालिसिस का सहारा लेना होगा।
ये सारे अपने कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या किया, सबको कटिंग वोल्टेज वी गामा से रिप्लेस कर दिया। ये 990, ये 12.7 आ गया। मुझे यहां से करंट निकालनी है, so I'm calling it as ID, which is IDC obviously, which he has asked me to calculate. I've called it as ID. IDC कह लो, कहना चाहते हो अगर आपकी मर्जी। So what will be ID? ID will be 12.7 minus 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, यानी कि 4 times 2.8 divided by 9900. So ID is coming as 1 milliampere. चलो भाई, पहला आंसर तो आ गया। आईडीसी पूछा था हमने, निकाल दिया। अब उसने क्या पूछा है, डायोड एसी आउटपुट वोल्टेज यानी VAC. So for that I'll have to do the AC analysis. Okay, let's do the AC analysis. RD, dynamic resistance, or the AC resistance, is equal to eta VT divided by IDC. Eta mentioned नहीं है, so if not mentioned we will take eta as 1. VT 25 मिली उसने दिया हुआ है, IDC 1 मिली हमने निकाला है. Hence you can see the AC or the dynamic resistance is coming as 25 ohms. सबको हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया VP cos of omega t. So now VAC is the voltage across this portion, जो उसने दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे देखो VAC पूरा ही दिया हुआ है. So VAC will be equal to VP, that is 100 cos of omega t divided by 9900 plus 100 into 100. ठीक है, this upon this into 100 milli. So VAC is coming as 4 cos omega t मिलीमीटर. ये हमारे पास आंसर निकल के आया है. इजी था ना यार, ये तो बिल्कुल वैसे ही था जैसा मैंने कल तुम्हें करवाया था, मतलब प्रोसीजर समझाया था, उस प्रोसीजर पे सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया. ये गेट का क्वेश्चन था, ये गेट का क्वेश्चन था. डन डन. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर क्वेश्चन.
A DC current of 26 microampere flows through the circuit shown below. कितना 26 है ना, वैल्यू भूल गई। आई तो 26 ही थी। चलो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। द डायोड in the circuit is forward biased and has an ideality factor of 1, ठीक है, at the quiescent point the diode has a junction capacitance of 0.5 nanofarad. Its neutral region resistance कैन बी निग्लेक्टेड। ये आपको पता भी नहीं है क्या होती है, क्योंकि ईडीसी में पढ़ोगे, अदरवाइज कुछ होगी तो वैसे निग्लेक्ट करनी है। इट्स न्यूट्रल रीजन रेजिस्टेंस कैन बी निग्लेक्टेड। वीटी इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 6 रेडियन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल सिग्नल कंपोनेंट of the diode current is उतना है नहीं।
ध्यान रखना इस चीज का। 90 लास्ट से मुझे सब याद था। रीजन ये है कि एनालॉग मैंने पढ़ाया था काफी साल पहले, मतलब 7-8 साल पहले मैंने पढ़ाया था एनालॉग, मतलब उससे पहले पढ़ाता था एनालॉग। क्योंकि शुरू शुरू में क्या था, मैंने स्टार्टेड टीचिंग ना, तो इंस्टीट्यूट्स मुझे फोन कर करके बुलाया करते थे, सर ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, टीचर नहीं मिल रहा। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार फंस गया था कहीं पे, तो मैंने पढ़ा दिया। फिर एनालॉग फर्स्ट, मतलब मैथ्स पढ़ा उस साल, तो सब कुछ मेरे से पढ़वा लिया था उन्होंने। उस साल मैंने मैथ्स पढ़ाया, डिजिटल पढ़ाया, मशीन्स पढ़ाया, एनालॉग पढ़ाया। ठीक है, सब पढ़ाया था उस साल मैंने, नेटवर्क कंट्रोल, सिग्नल। फिर तो पहले मैं एनालॉग पढ़ाया करता था, 2-3 बार मैंने पढ़ाया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह जा जाके, जहाँ फंस जाते थे सब्जेक्ट, एनालॉग बुला लेते थे पढ़ाने के लिए मुझे। तो अब पता नहीं यार, मतलब तुम्हारी तरह वो लगी नहीं, कह सकते तुम्हारी तरह नहीं पढ़ाया। रीजन ये था कि मतलब छोटे इंस्टीट्यूट जो थे ना, वहां पे आर्ट्स बहुत कम देते थे, सो दे वांटेड मी टू फिनिश क्विकली। तो एनालॉग मैंने डिटेल में पढ़ाया था, बिकॉज एनालॉग को तो मैंने बोल दिया था कि खत्म हो ही नहीं सकता, तो एनालॉग डिटेल में था। बाकी सब्जेक्ट थोड़े छोटे थे, लेकिन ये है कि इतना करवा दिया था कि उसमें से काफी रैंकर्स निकल गए उस बैच से। कई रैंकर्स निकले थे गेट के उस साल उस बैच से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं जॉब रिजाइन करने के बाद, प्रॉपरली रेजिग्नेशन के बाद, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया अपने पिछले इंस्टीट्यूट के साथ, तो फिर मुझे अलाउड नहीं था कहीं और जाके पढ़ाना। तो फिर मुझे फोन आता था, सर पढ़ाने आ जाओ आपसे, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता था ना, छोटे इंस्टीट्यूट्स में पहले ये लोग क्या करते थे ऑफलाइन में, दैट इफ यू टेक एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर, सो दे गिव यू परमिशन टू सिट नेक्स्ट 2 years ऑल्सो। कि पहले साल कुछ पढ़ा, कुछ छूट गया अगले साल कर लो, कुछ छूट गया अगले साल कर लो। तो बच्चों ने क्या मेरे से पढ़ा डिजिटल। अब ये कुछ बच्चे क्या करते थे, पढ़ने के बाद सोचते थे अगली बार कोई नया टीचर आया उससे पढ़ ले। तो मेरी वजह से 3 टीचर उनको हटाने पड़ गए। फिर लास्ट में फोन कर रहे हैं, सर कोई नहीं पढ़ा पा रहा, प्लीज पढ़ा दो। मैंने कहा भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब नहीं मैं आ सकता पढ़ाने। सो चलो छोड़ो वो सब। मैंने जब एनालॉग पढ़ाया था तो मेरे पास नोट्स पूरे मेरे पड़े हुए हैं। अब मेरे नोट्स में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन होगा ना, तो मैंने नोट्स में लिखा होगा गेट किस ईयर का क्वेश्चन है, ईसी का है, इलेक्ट्रिक का है, इंस्ट्रूमेंटेशन का है, ऐसे करके। अब ये कोई टॉपिक लिख रहा हूँ तो मैं बुक मेंशन करता हूँ कि मेलविनो से लिया है, या फिर डोनाल्ड नीमैन है, बॉयलस्टैड का है, सेड्रा स्मिथ का है। ऐसे मैंने लिखी होती है चीजें जब मैं पढ़ अपने नोट्स बनाता हूँ, ताकि if I need to refer these notes maybe after 20 years, so I know from which book I referred this thing, so that I can read the book also going back to that. तो लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था, तो मुझे अपने नोट्स खोलने पड़ गए। जब मैंने नोट्स खोले तो मैंने किताबें दोबारा से पढ़ने लगा लास्ट ईयर जब ये पढ़ाया। तो लास्ट ईयर मुझे याद था कौन सा क्वेश्चन गेट का है, कौन सा किस बुक का है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर जो मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं क्लास में बता रहा होता हूँ कि देखो बॉयलस्टेड में ये दिया हुआ है, सेड्रा में ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये इसका होगा, मिलमैन में ये है। इस साल मैं नहीं बता पा रहा क्योंकि मुझे याद नहीं है, पर वैसे तुमने क्या करनी है, किस बुक में क्या है। पर ये गेट का क्वेश्चन है, एंड आई प्रूव यू आफ्टर दिस क्वेश्चन कि गेट के क्वेश्चन कितने खतरनाक लगते हैं, पर बेचारे होते बहुत डिसेंट है। सो एनालॉग एज इट इज नॉट वेरी टफ इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सोचो अगर मैं क्वेश्चंस ना करवाऊं, तुम्हें खाली थ्योरी पढ़ा के छोड़ दूं, या 2-3 क्वेश्चन करवा दूं, तो तुम्हारा क्या हाल हो। एनालॉग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, एंड दैट टू गुड क्वेश्चंस व्हिच आर प्रोबेबल, मींस आने की संभावना बहुत ज्यादा है उनके एग्जाम में। करवा दूं, बना दूं सवाल ये कि अभी कोई है, मैं हिम्मत कर रहा हूं सर, अभी मेरे में हिम्मत बची है करने की। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो बना दूं, क्या वेट करूं। चलो कर लो ट्राई चला। कैलकुलेशन क्यों फंस, देख कैलकुलेशन फंस रहा है ऋतिक, चल वो तो मैं कर दूंगा, कॉन्सेप्ट मिल गया है ना, खत्म। कैलकुलेशन तो अपन निपटा ही लेंगे अंडर प्रेशर। नीचे मैसेज चलेगा मुझे, 4 भी शुरू हो गया होगा तब तक, जितना तुम 5 तारीख तक बोल रहे हो करना है इलेक्ट्रिकल के लिए। बेटा जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी ये करूं कि मुझे कॉल आ जाए और मुझे बोले कि नहीं सर आपको यूट्यूब पे ये वाले वीडियोस लेने हैं, तो मैं करूं ऐसा। पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर कोई ये बोलता है मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर द गेट एग्जाम, ये कर लिया तो ये हो गया, एनालॉग में ये करके जाइए, कैसे बोल सकते हो यार। तुम आज खुद श्रद्धानंद बेटा किताब उठाना पीवाईक्यू की, तुम देखना किसी साल डायोड से क्वेश्चन आया, किसी साल मॉसफेट से नहीं फंसा, किसी साल मॉसफेट से फंस गया और ओपैम्प से फंस गया, डायोड और बीजेटी से नहीं फंसा, किसी साल बीजेटी से सारे क्वेश्चन आ गए, मॉसफेट वगैरह टच ही नहीं किया।
मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा प्रिडिक्टेबल नहीं है, बिकॉज ऑल, तुम बताओ डायोड हमने पढ़ा ना, तुम मुझे बताओ, तुम डायोड पढ़ने के बाद अब ये बता सकते हो इस साल गेट वाले सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तुम्हें भी पता है जीरो डायोड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल में सवाल पूछेंगे जीरो डायोड से। तुम्हें भी पता है क्लिपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तुमने भी देखा कि मल्टीप्लायर जो है डबलर वगैरह के सर्किट भी आ सकते हैं, बेसिक डायोड के क्वेश्चंस ऑन ऑफ वाले, स्टेट वाले, करंट वाले, वो भी आ सकते हैं। तुम तुमने तो पढ़ लिया ना, अब तुम मुझे बताओ तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं हो पाता। हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ एज ए टीचर हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। मैं हर साल गेट के पेपर देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, मैं हर साल सॉल्यूशन बनाता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि यार पिछले 2 साल से ये बार बार मॉसफेट पे सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल से मॉसफेट पे सवाल आ रहे हैं, आजकल मॉसफेट ट्रेंड में है और मॉसफेट जगह जगह यूज भी हो रहा है। हो सकता है इस साल भी मॉसफेट से क्वेश्चन आए, बिकॉज मॉसफेट में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें अभी स्कोप है क्वेश्चन पूछने का। हो सकता है। अब मैं ये देखूंगा कि यार डायोड से पिछले 3 साल से सवाल आ रहे हैं, लेकिन डायोड मुझे पता है कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि उससे चौथा साल भी सवाल पूछ ले, हो सकता है वो इस साल शिफ्ट कर जाए। तो अब मुझे लग रहा है कि इस साल डायोड कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। सो वो पेपर कर करके हम लोगों को एक फीलिंग आती है किस तरह का होगा बस। बट नो बडी कैन प्रिडिक्ट, आई एम टेलिंग यू, प्रिडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट इन द गेट एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलो कि मैं प्रिडिक्ट करूंगा, गेट पे बहुत डिफिकल्ट है। ऋतिक होता ही है बेटा, होता ही है, मैं बता तो रहा हूँ, होता ही है। तो जो लोग आते हैं ना लास्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फॉर द गेट, ये कर लिया तो गेट में ये सब्जेक्ट हो गया। कैसी बात कर रहे हो, दे दो भैया फिर तुम रैंक वन ले आओ इस बार, है ना? ऐसी बात करनी है तो दे के रैंक वन ले आओ तुम। तो इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए, इस मुश्किल से सवाल को देखो कितना आसान सवाल है। नहीं हुआ अभी देखना चाहिए, तुम देखते ही बोलोगे अरे ये था। देखो, A DC करंट ऑफ 26 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट, मतलब जब मैंने ये वोल्टेज लगाई तो डीसी करंट 26 माइक्रो एम्पियर गई। इसलिए वोल्टेज नहीं दी उसने कि मुझे करंट पता लग गई आईडीसी। चलो मैंने कहा आईडीसी मेरे दिमाग में आ गया, मैंने अपने दिमाग में रख लिया आईडीसी पता है। डायोड इन द सर्किट इज फॉरवर्ड बायस, दिख ही रहा है, एंड हैज एन आइडियलिटी फैक्टर ऑफ 1। जैसे ही उसने ईटा 1 दिया, डायोड दिया, मेरे दिमाग में आ गया डायनेमिक रेजिस्टेंस ईटा वीटी बाई आईडीसी, पक्का वही लगने वाला है। मैंने कहा कोई बात। क्विसेंट पॉइंट पे जंक्शन कैपेसिटेंस, अच्छा वो कैपेसिटेंस भी दे रहा है। तो मुझे तो पता है कि जंक्शन कैपेसिटेंस सीडीएस जो है वो पिक्चर में तब आएगा अगर मेरा हाई फ्रीक्वेंसी होगा। देख लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है तो ले लेंगे इसको, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। न्यूट्रल रीजन रेजिस्टेंस कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है वो तो वैसे भी निगलेक्ट करनी थी, मैंने नहीं भी देता। वीटी 26 मिलीवोल्ट, अच्छा वीटी भी दे दिया इसने, ईटा भी दे दिया, आईडीसी भी दे दिया। दिमाग में चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है कैसे कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। ओमेगा इज दिस, अरे वाह, हाई फ्रीक्वेंसी दे दिया मतलब अब तो ये लेना पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी दे दिया मतलब अब कैपेसिटर भी पिक्चर में आएगा, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल सिग्नल कंपोनेंट, एसी, एसी का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करना है। तो बोल रहा है कि जब मैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करूंगा मतलब जब मैं एसी लगाऊंगा तो बताओ करंट कितनी होगी, जब एसी लगा तो करंट कितनी होगी डायोड में से, इसने ये पूछा। मैंने कहा ठीक है, अगर एसी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस होता है तो हम डायोड को रिप्लेस करते हैं उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के साथ और कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए होगा ईटा वीडी बाई आईडीसी, वो मैं निकालता हूं डीसी से, लेकिन आईडीसी तो दे दिया, वीटी भी दे दिया, इसका मतलब मेरा आर निकल गया, जंक्शन कैपेसिटेंस पता है, तो सीधा ही एसी का सर्किट बना लो, सीधा ही एसी का सर्किट बना लो। इतना तो सवाल पढ़ के अपन को समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस स्टार्ट किया, डायोड को रिप्लेस किया उसके स्मॉल सिग्नल एसी मॉडल से जो मैंने कल सिखाया था आपको, आर एंड सी इन पैरेलल, आर डी, सी डी, जो उसने जंक्शन कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100, 5 साइन
ओमेगा टी मिली वोल्ट। हमसे वो पूछ रहा है डायोड से क्या करंट जाएगी, मतलब ये करंट, ये जा रही है ना डायोड से करंट आईडी, ये डायोड है, ये वो मेरे से बोल रहा है निकालने के लिए। इसको थोड़ा सा इधर ले। खत्म हो गया सवाल, नेटवर्क का क्वेश्चन बन गया अब तो नेटवर्क का सवाल है, तो क्या है, नेटवर्क का क्वेश्चन बन गया। तो मैंने कहा कि मुझे अगर ये आईडी निकालना है तो एक काम कर लो यार, इजी तरीका ये है, इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लो और इस वोल्टेज को उससे डिवाइड कर दो, तुम्हें डायोड करंट मिल जाएगी। सवाल हल हुआ यहां तक समझ में आया। बस अब आरडी और सीजी अननोन है, निकाल लो यार। आरडी विल बी ईटा वीटी बाई आई डी सी, ईटा इज 1, वीटी 26 मिली, एंड दिस इज 26 माइक्रो, सही दी थी वैल्यू मैंने। सो आरडी इज कमिंग एज 1 किलो ओम। कैलकुलेशन भी कितनी इजी है इसकी यहां तक। आगे अब देखो क्या आता है इक्विवेलेंट में। सुना हो इक्विवेलेंट इंपीडेंस, मुझे तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालनी है। इट विल बी आर ऑफ डी, मतलब आर डी, आर ऑफ डी सॉरी, आर डी पैरेलल विद माइनस जे एक्सी, जो भी इसकी रिएक्टेंस आएगी कैपेसिटेंस, ये भी निकाल ही लेते हैं, वैसे मैंने लिख दिया, चलो कोई नहीं। प्लस 100, ये इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ रही है इसकी, दैट इज आर डी इंटू, ये कितना होगा रिएक्टेंस, 1/j ओमेगा सी लिख लेते हैं, अपॉन आर डी प्लस 1/j ओमेगा सी जे प्लस 100। एलसीएम ले लेते थोड़ा इजी हो जाएगा, आर डी अपॉन 1 प्लस j ओमेगा आर डी सी जे प्लस 100। अब डाल देते हैं बेटा सारी की सारी वैल्यूज। आर डी इज 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस j ओमेगा मैंने 2 × 10⁻6 दिया हुआ है आपको, ये देखो 2 × 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू सी जे, जंक्शन कैपेसिटेंस 0.5 नैनो फैरेड। कैलकुलेशन भी इजी है क्वेश्चन में। 1 प्लस j, ठीक है, ये 9 कट गया, ये 10 मतलब एक जीरो हटा 1 आ गया, प्लस 100। सॉल्व करते हैं। Z equivalent is 100 plus 100 plus 100j, 100 plus 100 plus j 100 divided by 1 plus j, which can be further written as 200 plus j 100 upon 1 plus j. Now you see, उसने मेरे से पूछा हुआ डायोड करंट की वैल्यू कितनी होगी, इट मींस ही इज ओनली आस्किंग मी टू पुट द मैग्नीट्यूड ओवर हियर, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द एंगल एंड अदर थिंग्स, क्योंकि मुझे यहां वैल्यू पुट करना है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना। आप नहीं भी निकालो, प्रॉपरली आंसर निकाल के वहां से मैग्नीट्यूड लिख लेना, बट मैं बोल रहा हूं क्या ये कैरी करना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहीं पे। नेटवर्क पढ़ा हुआ, ये सब चीजें आपको इजी है, बच्चों वाली हैं। अंडर रूट ऑफ गड़बड़ क्यों आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दी में। कितना हो गया ये, 1100, अंडर रूट ऑफ 1100 स्क्वायर। मैं वही सोचो कि थोड़ी छोटी सी वैल्यू बन गई, क्या हो गया ये। मुझे फाइनल आंसर याद रहते हैं ना क्वेश्चंस के। अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस
1. सो ये आ गया Z इक्विवेलेंट। इसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं, कितना आ रहा है? 1100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय √2, 781.02। भैया इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ गई है। अब मुझे चाहिए डायोड करंट Z इक्विवेलेंट। तो अब स्टेप थे बस सिंपल सिंपल से, उसके बाद सारा का सारा जो है आगे डायोड फाइल करता हूँ निकालने की। मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ लेकिन ठीक है, मुझ पे बाकी चीजों का भी लोड है, बाकी चीजें भी करवाने के लिए बोल रहे हैं, मेरे पास लोड है अभी चीजों का। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करूंगा, अदरवाइज 6-7-8 डेज के बाद मैं आपको पूरे के पूरे टाइप्ड क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। में से किसी एक डे को मैं आई विल बी स्टार्टिंग द क्रैश कोर्स ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस, आई विल बी स्टार्टिंग दैट। ओके, विद द पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Common amplifier, the power at the primary and the power at the secondary is same। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी की पावर सेम होती है। BJT right now we have nothing like BJT, we do not know anything about BJT, but the only problem that I have right now is I do not have something which can give me power amplification. I want power amplification. How to do the power amplification? So I thought, let's think at the grassroots level. Okay, at the base level, let's think about something. Let's think about the logic through which I can achieve the power amplification. If I can develop a logic, then I can develop a device also which will fulfill my logic. But first thing is that the logic should be there. समझ में आ रहा है? Logic should be there. We said fine. At the output port, we are calling it as V2. The current I2 इतनी मेहनत से मैं लाइनें बना बना के तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इंटरव्यूज के लिए, नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है ना। मैं तभी तो कहता हूँ ना कि मतलब अक्सर मेरे स्टूडेंट्स कहा करते थे कि अगर तुम्हें रट्टे मारने हैं तो किसी से भी पढ़ लो, पर अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो आयते सर से पढ़ो, गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। बस उसके लिए है अभी। मजा आएगा, चीजें मजा आए। सो V1 I1 V2 I2 मैंने यहां बना दिया। ओके, नाउ इट्स अ टू पोर्ट नेटवर्क। आई एम सेइंग दैट I want to go for a, instead of a 4 terminal, how many terminals I have over here? 4 terminals. Instead of 4 terminal, I want to go for 3 terminal. 4 terminal की जगह मैं 3 terminal करना चाहता हूं। सर 3 terminal कैसे अचीव करेंगे? इट्स वेरी इजी। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक दिस टर्मिनल कॉमन। कॉमन ले सकते हैं इसको? ठीक है, ठीक है। आई एम सेइंग दैट लेट्स से द करंट एट द इनपुट इज I इनपुट, और यहां लोड पे करंट यहां से बाहर जाएगी I आउटपुट। मतलब ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन होगी I1 I2, लेकिन मैं सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन लोड में तो करंट I नॉट लूंगा। टू पोर्ट में भी आपको याद है लोड में करंट I जाती थी, फिर हम लिखते थे I2 इज इक्वल टू माइनस IL। सॉल्व तो IL करनी है ना लोड में, तो मैंने सॉल्व I नॉट ले लिया और ये इनपुट करंट I इनपुट हो गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस at the input port is low. Let's call it as 100 ohm, low lady. And the resistance at the output port, let's take it as 1 mega ohm। ये वैल्यूज बहुत बड़ी ना आ जाए, चलो छोड़ो, समझना ही है। बहुत हाई ले ली, चलेगा? इनपुट पोर्ट पे बहुत लो ले लिया, आउटपुट पोर्ट पे बहुत हाई ले लिया। ठीक है, ये कल भूल मत जाना। बस मैं ये करवा के छोड़ रहा हूँ क्लास आज, बाकी बीजेटी में कल पढ़ाऊंगा क्योंकि पूरा कॉन्टिन्यूटी में जाना चाहिए बीजेटी, एंड दैट विल टेक अराउंड 1.5 to 2 hours। क्योंकि लास्ट ईयर एक्चुअली क्या हुआ था, बेसिकली मैं बताऊंगा बीजेटी कहाँ से स्टार्ट होता है, पर मैं तुम्हें कल पूरा ईडीसी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद फील ही नहीं आएगा तुम्हें बिल्कुल भी, वरना तो एनालॉग का पार्ट नहीं है जो मुझे पढ़ाना है अब, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ा दिया तो तुम्हें पढ़ा दूंगा इस बार। लेकिन ये कल भूल मत जाना, क्योंकि मुझे कल जो स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए। तो ये बस मैं पढ़ा के छोड़ रहा हूँ क्लास तुम्हारी, लेकिन ये कल रिवाइज करके आना, भले ही इतना रिवाइज कर लेना, भूलना मत ये।
इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो ली मैंने, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई ली। सर कैसे ले ली? अरे एज्यूम कर रहा हूं भाई, एजम्पशन ले रहा हूं। क्यों? मैं ग्राउंड लेवल सेट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे एम्पलीफिकेशन करनी है पावर की, तो मैं कुछ कुछ सोच रहा हूं, ये एज्यूम कर लेता हूं, ये एज्यूम कर लेता हूं, ये एज्यूम कर लेता हूं, कुछ एजम्पशंस करके मैं बना रहा हूं। अगर मेरी एजम्पशंस पे सही होगी पावर एम्पलीफिकेशन, तो फिर मैं डिवाइस डिजाइन करूंगा उन एजम्पशंस को फुलफिल करता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरी थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? क्लैरिटी मिल रही है सबको? क्या हो रहा है अभी? एजम्पशंस क्यों ले रहा हूं मैं, कैसे ले रहा हूं? एजम्पशंस है, कुछ भी ले रहा हूं। ठीक है ना? चलो, तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो ली, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई ली, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी तरह ये भी अचीव कर लूं कि आउटपुट करंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनपुट करंट, दोनों करंट भी बराबर करनी है अपन को, तो क्या होगा? तो देखते क्या होगा बेटा। इनपुट पे पावर कितनी आएगी? आई इनपुट स्क्वायर। यहां तक हम लोगों के बीच में सहमति है? यहां तक क्लियर है? So now let's take the ratio of the output power and the input power. Ratio क्या आ गई? Okay. Now I output and I input, they are approximately equal. So are they going to get cancelled out? Yes, ये तो कट गए। इसका मतलब आउटपुट पावर आ रही है R output upon R input into input power. What is output resistance? I have taken as 10 power 6 1 mega ohm. Input resistance or P input jackpot. आगे आंसर अपना मिल गई पावर एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब मैंने एम्पलीफिकेशन अचीव कर ली। ग्राउंड रूल सेट करते हैं कि मुझे एक डिवाइस बनाना है जो ये काम कर पाए। सर क्या काम कर पाए? तो हमने नोटिस किया कि एम्पलीफिकेशन के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ी है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? assumption ली हमने, क्या ली थी? इनपुट करंट should be approximately equal। ये तीनों कंडीशन सेट, आज मैंने टेढ़ा लिख दिया ना, आज भी ऐसे लाइन ऊपर चली गई, चलो कोई नहीं। किसी डिवाइस ने अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो वो एम्पलीफिकेशन करेगा, तो वो एम्पलीफिकेशन करेगा। क्लियर हो रहा है इतना? अगर ऐसा अचीव कर लिया, तो समझ लो हमने बना लिया अपना एम्पलीफायर डिवाइस। एंड इफ यू नोटिस इन दिस डिवाइस विच आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर डिवाइस है, अब मुझे पता नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना? जैसे नेटवर्क में बोलते हैं दिस इज अ ब्लैक बॉक्स, सो ऑब्वियसली इनसाइड इट देयर इज सम डिवाइस, and that device is having low input resistance, high output resistance, output current and input current approximately equal. This device I want. But in this device, if you notice what is happening, can you see the signal is getting transferred from the low resistance region to the high resistance region? Signal is getting transferred from low resistor to high resistor. तो इस स्पेलिंग देखना मैंने गलत, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। सो दैट्स व्हाई वी नेम्ड इट ट्रांजिस्टर। इसका नाम हमने रख दिया ट्रांजिस्टर। ठीक है, ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया ट्रांजिस्टर। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। अब बीजेटी का नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो मैं कल पूरा समझाऊंगा। व्हाट इज बाइपोलर, व्हाट इज जंक्शन, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, व्हाई वी नेम्ड इट बीजेटी। मॉसफेट इज आल्सो अ ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट इज आल्सो अ ट्रांजिस्टर, सब ट्रांजिस्टर है, बट इफेक्ट्स के चलते आगे आगे नाम चेंज हो गए इनके। तो अब हमें एक ऐसा डिवाइस कल पढ़ना होगा जो इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट बीजेटी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बीजेटी। ठीक, ठीक है।
तो कल जब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास, आप समझ जाओगे कि मैंने क्लास क्यों यहाँ छोड़ दी थी, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर ही नहीं सकता मैं अगले टॉपिक की, और वो कम से कम 2 घंटा लगातार चलता हुआ जाएगा। और कल की क्लास है, परसों से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, जो बाइसिंग के लिए बोल रहा था ये, और फिर बाइसिंग के सर्किट्स आ जाएंगे उसके बाद, फिर आगे चलता जाएगा, फिर आगे बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो आज पूरा डायोड फैमिली जो है वो रिवाइज करिए। ठीक है, ट्राई टू रिवाइज डायोड, बिकॉज तुम भूल गए होगे अभी तक। अभी मैं तुमसे पूछ लूंगा रेक्टिफायर, सो गिव इट अ ट्राई, है ना, कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू रिमेंबर थिंग्स। तो आज रिवाइज करिए पूरा बीजीटी, सॉरी पूरा डायोड, कल से बीजीटी स्टार्ट करेंगे। सर थोड़ा बोल दीजिए, नेटवर्क का क्रैश कोर्स मैक्सिमम कब तक शुरू हो जाएगा? बेटा बता तो दिया, बाई एनी मींस 20 मैक्स। 18-19 ही मैं प्लान कर रहा हूं दिमाग में, 17-18-19 मैं प्लान करके चल रहा हूं दिमाग में, 20 मैक्स। कोर्स क्या होता है एंड व्हेन टू अटेंड इट? क्रैश कोर्स मैं इसका नाम रखता नहीं हूं प्रिंस, आई नॉर्मली कॉल इट एज रैपिड कोर्स, because crash course is kind of a course in which I will not be doing the derivations, I will not be giving a lot of explanations. For example, जिन लोगों ने नेटवर्क पढ़ा हुआ है, अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा जब क्रैश कोर्स, तो मैं स्टार्ट करूंगा चार्ज से जैसे पढ़ाया है, लेकिन आई विल नॉट टेल चार्ज क्या होता है, what is the charge on one electron, whether coulomb is a big unit of charge or a small unit of charge. Those are interview questions. I'll simply say that current I is equal to dq by dt and qt will be q0 integral 0 to t id dt. खत्म हो गया बस चार्ज। जल्दी जल्दी सब कवर हो जाए और आप एग्जाम में सवाल बनाने लायक हो जाओ। मेरा ये टास्क नहीं है आपको पूरा फील आए क्या है। जैसे मुझे बीजीटी पढ़ाना है, तो ये सब थोड़ी ना पढ़ाऊंगा फिर मैं सीधा आपको क्रैश कोर्स में क्या करूंगा, लेके जाऊंगा मेथड टू आइडेंटिफाई दैट इन विच रीजन बीजेटी इज ऑपरेटिंग। उस पर 3 क्वेश्चन, खत्म, न्यूमेरिकल आ गया, एग्जाम के लिए सवाल तैयार हो गया, तुम्हें समझ में आए बीजेटी है क्या नहीं है, कहां से आया, कोई मतलब नहीं है। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगी, जिस लोगों ने जिन्होंने से मेरा पढ़ा हुआ है आपका पूरा क्विकली रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ और आप सिर्फ क्रैश कोर्स से करना चाहते हो, तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे सवाल बनाने के लिए। पीवाईक्यू क्लास आज नहीं है बेटा, आज कोई क्लास नहीं है। दिवाकर व्हेन क्लास होगी मैं इंटीमेट करूंगा। मैं थोड़ा सा पैक चल रहा हूं अभी, क्योंकि जो क्रैश को स्टार्ट करना है उसके लिए मुझे पूरे फाइल्स अलग करके उसकी टाइपिंग का वो सब सरदर्दी चल रही है बहुत ज्यादा करें। मेरे पास फ्री आवर्स रहेंगे 10 तारीख तक, तो पैरालॉग का चलिए, तो कल मुलाकात होती है फिर आप लोगों से। टेक केयर बेटा, एंजॉय योर डे, बाय बाय। बाय।